Hey, hi everyone. My name is Avinash and welcome back to my channel. So, today we will talk about how to make a career in AI or how to make a transition into AI. No matter what you are doing in life, but AI is changing everything somewhere directly or indirectly to your life. These days, AI is taking over all the industries, whatever you can think of. So, it's the best time to make a career in AI. Let's understand. Why we need to make a career in AI. Okay, so first thing we will try to discuss is the demand or the why part, right? So let's say why we need why career in AI. That's the question. If in this case, the first thing, at least as an engineer, is high demand, isn't it? As you are hearing these days, lots of news about AI, and it's expected in coming days and coming years there would be n number of jobs in AI, and that is obvious thing because every industry is getting affected by AI. But let's discuss a bit more. थोड़ा और सोचते हैं why AI will disrupt everything. Why there will be a job for AI engineer? The thing is, the actual game happens is called as optimization. What is this? So the all industry, कोई भी company ले लो, कोई भी domain ले लो, every company wants to save the money. In other words, they want to optimize it. कम पैसे में they want a better output. That is where anything which can be, uh, replaced by AI, they will replace it. So almost all white collar job can be replaced with AI. That's the thing. That's the worrisome about AI. So it's better to be in creator side of AI rather than just a consumer side of AI. Okay, that's high demand. Second thing is uh, high salary. ये तो obviously कोई भी चीज की ज्यादा डिमांड रहेगा तो सैलरी मिलेगा ही. तो ये दो फैक्टर है मेन चीज जिसके बेसिस पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमको एआई में करियर बनाना चाहिए एज एन इंजीनियर और नॉन इंजीनियर को भी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल थिंक इज हु कैन डू दिस, who can transition into AI. Literally, if you ask me personally, anyone who has a passion or the grit to learn something new in the space of AI, in the space of neural network, they can do it. Simple. But that's a very high level statement. थोड़ा इसको break down करते हैं. The first would be if you are like So student. Let's get back to the topic. Who can do it? Okay. So, as I said, anyone who has a willingness to learn technology can make a transaction into AI. However, there are few career paths which can help you easily to make a transaction. For example, if you are a software engineer, then it's expected that you know coding. That's the first. Second is data scientist. Actually, it's data scientist is more of like AI job only, but little bit of changes in terms of learning something new. Third one would be the data analyst. Uh, it's very easy for you as well because you just need to learn the coding and a few technical stuff. Non-tech professional, of course, they can also learn it. The only thing is they non-tech can also learn it, but they need to learn a lot. Right now, I will talk in the next section what exactly they need to learn. But इन जनरल वही है, इस फील्ड में घुसने के लिए अच्छे से सीखना ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़, बहुत सारे मतलब डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं. हम बात करेंगे एग्जैक्टली क्या सब चीज़. सो बेसिकली कोई भी सीख सकता है एज लॉन्ग एज यू हैव ग्रेट. ठीक है. उसके साथ तो वाई एंड हु क्लियर हो गया आई होप. एक चीज़ समझना होगा कि इसमें टाइम कितना लगेगा. जब हम वाई एंड हु की बात कर रहे हैं तो ऐसा है कि
टाइम इसमें जो है सो लाइक 6 मंथ्स आपको देना होगा. ओके, 6 मंथ्स. आई नो यू विल बी डूइंग समथिंग, कहीं जॉब कर रहे हो, कोई टेक सपोर्ट में हो या बीपीओ में हो, कोई एडमिन में हो, डेटाबेस एडमिन, ईटीएल में कुछ भी कर रहे हो. आपको कम से कम डेली 2 से 3 घंटा निकालना ही होगा मिनिमम, और 6 महीना का टाइम देना होगा, तभी जाके आपको एआई में करियर बनेगा. With that, let's move on with the next topic. That is, इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, हम लोग जानेंगे क्या क्या सीखना होगा. ओके, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न इज पाइथन. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको आना ही चाहिए. अब यहाँ पे ये मत सोचना कि आई हर्ड दीज डेज पीपल आर टॉकिंग कि हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चैट जीपीटी या एआई कर देगा. भाई वो कर देगा, बट इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब आपको प्रोग्रामिंग पूछेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग पूछेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के कुछ एल्गोरिथम्स पूछेंगे, और इसके बिना आप मूव ही नहीं कर सकते हो. तो अगर आप कोडिंग से डरते हो तो प्लीज़ ये फील्ड आपके लिए नहीं है. कोडिंग से डरते हो, ऑफकोर्स यू कैन लर्न इट एंड मास्टर इट अगेन इफ़ यू हैव अ विलिंगनेस. बट ये सोचोगे कि नहीं मुझे आराम की ज़िंदगी जीनी है, कोडिंग वाला माथा पिच्ची नहीं करना है, तो भैया आप दूर रहो. तो आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट. वो एक हो गया पाइथन. दूसरा, पाइथन के बाद इसके लाइब्रेरीज बहुत सारे आते हैं, लाइक नामपाई सीख लो, पांडा सीख लो, साइकिट लर्न सीख लो, पाइटॉर्च फ्रेमवर्क सीख लो. ये सीख लो मैं बोल रहा हूँ, बस इसमें कुछ महीने लग जाएंगे, 1 महीने मान लो सब कुछ समझने में. तो पाइथन बेसिक आना चाहिए, कैसे काम करता है, उसके साथ लाइब्रेरीज आना चाहिए. उसके साथ जब ये सब समझ जाओ तब आपको थोड़ा बहुत अच्छा ये सब सीखोगे कहाँ से, पाइथन एंड लाइब्रेरीज. यूट्यूब पे 1000 वीडियो है, कहीं भी आप जहाँ से जो अच्छा लगे वहाँ से सीखो. थर्ड पॉइंट है थोड़ा बहुत स्टैट्स, बट स्टैट्स के साथ देखो यहाँ पे मैं स्टैट्स लिख देता हूँ जो हमेशा थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए. स्टैट्स प्लस लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ये 3 चीज़ आपको थोड़ा सा टॉप ऑफ द माइंड टचअप होना चाहिए. ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें मास्टरी कर लो, पीएचडी कर लो, नहीं. यू शुड नो द बेसिक्स. इसके लिए आप क्या करो, 3 ब्लू 1 ब्राउन नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके आप ये सीख सकते हो, बहुत ही अच्छा है. स्टैट्स के लिए खान एकेडमी तो हमेशा जिंदाबाद है. नाउ थर्ड वन इज important thing. Let's go to the ML, machine learning. ये एक्चुअली मैं जो ये बात बता रहा हूँ, दिस इज़ ए ट्रेडिशनल वे. ट्रेडिशनल इन द सेंस इसमें आप पूरा सॉलिड बन के निकलोगे, हर चीज़ आपको आ जाएगा. ऐसा नहीं कि शॉर्टकट. आजकल कोई ऐड देख रहे होगे कि विल मेक यू AI इंजीनियर इन 3 days 1 month. नो, ऐसा नहीं होगा, घंटा ऐसा नहीं होने वाला. मैं खुल के बोल रहा हूँ, वो बेवकूफ़ बनाता है. ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो. ऐसा होते तो इलॉन मस्क होते. तो आपको मशीन लर्निंग आपको आना चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू में जाओगे बोलोगे नहीं नहीं आई जस्ट नो LLM एंड ब्ला ब्ला, वो मन में तमाचा खींच के देगा, मुंह पे नहीं देगा लेकिन मन में खींच के देगा, बोलेगा भाग यहाँ से. क्यों? क्योंकि जब तक मशीन लर्निंग नहीं आती है, दैट इज़ द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ डेटा साइंस AI. तो हाउ कैन यू टॉक अबाउट समथिंग न्यूरल नेटवर्क एंड ऑल बेस्ड ऑन थिंग्स, राइट. तो मशीन लर्निंग आपको सीखना होगा. मशीन लर्निंग के क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग, ये बेसिक थिंग है. इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम आते हैं. अगेन यू कैन फाइंड इट विद एंड्रू NG कोर्सेज, यू कैन लर्न इट. नाउ द फोर्थ पॉइंट कम्स इज डीप लर्निंग. जब ML सीख लो तो डीप लर्निंग में आना होगा. डीप लर्निंग में 3 चीज़ है, ANN बेसिक न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, CNN एंड RNN. ये 3 चीज़ आपको एज ए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे काम करती है, क्या होता है, कैसा मैथमेटिकली कैसे काम करता है. CNN बेसिकली इमेज के लिए यूज़ करते हैं, RNN बेसिकली टेक्स्ट और सिक्वेंशियल डेटा के लिए यूज़ करते हैं. बट ऑनेस्टली ये बस थ्योरेटिकली और 1-2 छोटा मोटा प्रोजेक्ट करना है, बस दैट्स इट.
ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि ये सब का जो टाइम था वो चला गया, इन द सेंस कि ये इंटरव्यू के लिए जरूरी है, बट वेर एज इन इंडस्ट्री प्रैक्टिकली CNN and RNN are covered now by LLM. LLM आके इन लोग का बैंड बजा दिया. विल टॉक अबाउट दैट. तो जब तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा पाइथन लैंग्वेज आना चाहिए, उसके एसोसिएटेड लाइब्रेरी आना चाहिए, उसके साथ थोड़ा बहुत स्टैट्स और मैथमेटिकली रीगल होना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए. देन विल टॉक वी नीड टू हैव अ मशीन लर्निंग अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन रिग्रेशन. आजकल कोई भी इंजीनियरिंग में ये पढ़ाते ही है, तो दैट्स नॉट अ बिग थिंग. देन डीप लर्निंग यू शुड हैव ANN RNN CNN LSTM एंड ऑल. जब वहाँ तक पहुँच जाओ तब जाके गेम बदलता है, तब जाके दो रास्ता खुलता है. एक बनता है NLP का और एक बनता है कंप्यूटर विज़न का. कंप्यूटर विज़न जिस हिसाब से पहले था वो ये डेड हो चुका है. डेड इन द सेंस इसको ओवरटेक कर लिया तुमको, ये क्या बोलते हैं, LLM ने. LLM के अंदर ही इतना कैपेबिलिटीज़ आ गया कि पहले जो ये CNN से इमेज क्लासिफिकेशन और वगैरह वगैरह पैटर्न रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ये सब करते थे, वो सब साइड हट गया. LLM कैन डू everything, almost everything in terms of video also and photo. तो फोकस आ जाओ फिर बैक टू NLP. NLP भी क्या है? NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो बेसिकली टेक्स्ट पे फोकस करता है. सो अभी जो गेम चल रहा है मार्केट में, इंडस्ट्री में, द थिंग इज मल्टी मॉडल सुने होंगे बिफोर दैट. सो NLP में जब आओ तो जब LLM की बात हम करते हैं तो पहले जो LLM बना, पहले बर्ड से शुरुआत हुई थी. ऑल दोज थिंग्स स्टार्टेड विथ अ पेपर विच वॉज पब्लिश्ड बाय गूगल. you Many of you might know that attention is all you need, 2017, and after that BERT came into the picture with lots of NLP capability, and then उसके बाद GPT का तो अलग गेम चल रहा था, and they transformed the whole industry. तो इतना आसान बना दिया. पहले हमें याद है through NLP we used to do sentiment analysis and tokenization and tagging of the words, many things. But now LLM can do it easily. तो उसके बाद सो लेट्स फोकस. पॉइंट नंबर 6 क्या है, आपको बेसिकली LLM समझना होगा. मोटा मोटी ये समझो, you should know LLM. When we're talking about LLM means we are also talking about multi-modal. Right, multi-modal means which has the capability of understanding the text as well as the photo and the video. Means दुनिया में सोचो कोई भी डेटा कैसे जनरेट होता है, किस फॉर्म में होता है, नंबर, टेक्स्ट, यही, या फोटोज, वीडियोस, ऑडियो. ऑडियो का अभी इस पार्ट में हटा दो, बट ऑडियो भी समझ ही रहा है मल्टी मॉडल. सो almost everything can be understood by this model. So now as an AI engineer you need to focus on understanding the LLM. उसमें मल्टी मॉडल तो क्या क्या समझना होगा, LLM क्या है, कैसे काम करता है, what is the background, what is the architect, what is the published paper, उसको थोड़ा समझना होगा. आपको शुरुआत में उतना बनाना नहीं है जड़ से, but you have to understand the concept, how the LLM has been built on the transformer architect, how they played around, how Llama is different from ChatGPT or GPT, and Gemini is different, and all those things. You should have that fair understanding. Once you are done with that, then LLM के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, दो चीज़ से खेला कर सकते हैं. The first thing is RAG and the second one is agentic AI. Now here is the thing, I tell you, mark my words, RAG is going to die soon. I mean, 2 years back, almost 1 year, 1.5 years back, we used to do, PDF extraction, the content from PDF through question answering and all those things. But ये सब चीज़ अभी इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, इंडस्ट्री में लोग जानना चाहते हैं भाई क्या क्या क्यों रैग में. बट डाउन द लाइन ये जल्दी ही हट जाएगा. बट यू शुड नो हाउ डज द रैग वर्क्स, क्योंकि ऐसे ऐसे मॉडल आ गए हैं, जेमिनी आ गया है जो बोलता है तुम यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट गिव मी योर टेक्स्ट PDF फाइल और एनीथिंग एंड यू आस्क क्वेश्चन नो मैटर व्हाट इज द साइज. 2 million का कॉन्टेक्स्ट साइज है, एंड
अराउंड 300 to 1000 पेज उनका कैपेबिलिटी है पर सेशन. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? सो बट यू नीड टू नो द रैक. नाउ एजेंटिक एआई, दिस इज द बज वर्ड. एजेंटिक एआई, एजेंटिक एआई की क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका गेम बदलेगा, थोड़ा नहीं पूरा ही गेम बदलेगा. लेट्स टॉक अबाउट दिस. When we say agentic AI, it means we are talking about agent-based things. Now, when we say agent-based things, what do you mean? एजेंट मतलब दिमाग में क्या आता है जब एजेंट सुनते हो तो? अपना लाइफ में एजेंट कब सुना होगा? वो टिकट जो कटाया होगा रेलवे का, कोई एजेंट को पकड़े होगे, भैया टिकट कटा दो यार, कहाँ से कहाँ चाहिए, तो भैया दिल्ली से बनारस. ओह, तो वो क्या करता था? वो एज ए ह्यूमन बींग, उसको एक दिमाग था यहाँ पे, उसको तुमने कुछ बोला मुझे टिकट चाहिए, वो प्लान करता था, वो सोचता था अच्छा कल सुबह मैं काउंटर पे जाऊँगा या फिर IRCTC में जाऊँगा वेबसाइट पे, वहाँ इस बंदे की इस एज का इस नाम से टिकट कटाऊँगा. देयर वे सम प्लानिंग, राइट? सेम थिंग इज हैपनिंग इन अ रियल आर्टिफिशियल एजेंटिक एआई ऑल्सो. द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ ह्यूमन ब्रेन वी आर पुटिंग द LLM मॉडल. और हर चीज़ सेम रहेगा. यहाँ पे एक इंसान उसको इंस्ट्रक्शन देता था कि भाई तू टिकट कटा, बट हियर एक इंसान उसको क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई तू मेरा मेल रिप्लाई कर देगा. समझे? तो यहाँ प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे. प्रॉम्प्ट एंड इंस्ट्रक्शन मोर और लेस काइंड ऑफ सेम थिंग. समझ गए? तो ये खुद डिसाइड करता था कि मुझे सुबह 10 बजे AC में लेना है तो उसका 10 बजे, नहीं तो नॉन AC का टिकट लेना था 11 बजे, है ना? अपना इंडिया में तो यही सिस्टम है. बट यहाँ पे LLM डिसाइड करता है कि मुझे मेल किसका आएगा. पहले वो पूछेगा तुमसे, भाई किसका मेल, मेल तो 1000 आएगा. तुम में भी सब्जेक्ट दे सकते हो, कुछ सब्जेक्ट मे बी ऑफिस मेल, लेट्स से फ्रॉम योर बॉस समथिंग. इसको समझा दो, ये एक इंटेलिजेंट बंदा है, इसको बस तुम्हें समझाना है. तो बोलोगे कि भाई मेरा बॉस का ईमेल आएगा, तुम्हें बस रिप्लाई करना है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. तो ये LLM खुद ही ईमेल पढ़ लेगा और खुद ही उसका आंसर लिख देगा, ईमेल का रिप्लाई और भेज देगा. तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एजेंटिक एआई. एक एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, ऐसे 1000 काम कर सकता है. टेक्निकली एजेंटिक एआई डिजिटली दुनिया में कुछ भी हो उसको ये एग्जीक्यूट कर सकता है, बिकॉज इसके पास पावर है सोचने का, थिंकिंग, इज़ इट? थिंकिंग के साथ और क्या कर सकता है? प्लानिंग, रीजनिंग. जिसके पास ये 3 कैपेबिलिटी है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, इज़न्ट इट? सो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एजेंटिक एआई इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड. ठीक है. अब एज अ एआई इंजीनियर आपको एजेंटिक एआई पे कूदना पड़ेगा. पहले जितना मैंने बताया ये सब पॉइंट, पाइथन, ML, डीप लर्निंग, NLP, LLM, कंप्यूटर विजन, वो सब है, अच्छी बात है, वो सब आपको आना ही चाहिए. तब आप ये पूछोगे भैया क्या ज़रूरत तो नहीं है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का, वो क्लासिफिकेशन, लीनियर रिग्रेशन सीखने का? टेक्निकली नहीं है अगर आप एजेंटिक एआई के साथ खेलोगे. बट द प्रॉब्लम इज़ कि मार्केट में, खासकर इंडिया में, इतने लोग हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, पता ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है. वो इतना है कि जब कोई ओपनिंग आएगा तो वहाँ पे फिल्टर आउट करेंगे ना. 5 साल वाले एक्सपीरियंस पूछेंगे कि भैया हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. एजेंटिक आए तो आए हुए 4 दिन हुए नहीं, मोटा मोटी 6 महीना, 1 साल में ही गेम चल रहा है. तो वहाँ कैसे फिल्टर करेंगे? वो किसको लेंगे? वो उसको लेंगे जिसके पास ये पीछे का बैकग्राउंड डेटा साइंस एआई का है, जो पिछले 5-10 साल से रगड़ रहा है, अपना जूता घिस रहा है इंडस्ट्री में. दे नो व्हाट इज डेटा, दे नो हाउ टू प्ले विद दैट. ठीक है, वो उसको प्रेफरेंस देंगे. तुम अच्छा हो गए LLM को समझने में, LLM पे प्रॉम्प्ट लिखने में, LLM को लेके कोई एप्लीकेशन बनाने में, गुड फॉर यू. बट उसके साथ जब ये जुड़ जाएगा तो एक कहावत है ना, सोने पे सुहागा, वही हो जाएगा. सिंपल बता रहा हूँ. तो एजेंटिक एआई पे अगर कूदना है, बेसिकली जब एआई इंजीनियर आज के टाइम में बात कर रहे हैं तो एजेंटिक एआई की बात कर रहे हैं. और जब एजेंटिक एआई की बात कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ करना होगा.
फिर से मैं आराम से समझा देता हूँ। यहाँ पे LLM क्या है इसको समझ लो हर एंगल से, एकदम अच्छे से तार के। उसके बाद LLM पे रैग क्या है, रैग के 2-4 प्रोजेक्ट बना लो। उसके बाद रैग जब समझ जाना, देन टॉक अबाउट एजेंटिक AI बेस्ड प्रोजेक्ट। इसमें क्या करोगे, जो मैंने वो एग्जांपल बताया ईमेल रिप्लाई, वैसे वैसे आप 2-4 यूज़ केस ढूंढोगे ना, ढूंढोगे इन द सेंस ऑनलाइन ढूंढो। आप कहाँ हो लाइफ में वो भी मैटर करता है। स्टूडेंट हो तो वो इंडस्ट्री लेवल का यूज़ केस नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो बड़ा चढ़ा के सीख सकते हैं कि भाई इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, मैंने भी ऐसा किया है, समझे ना। या अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने आसपास के डिपार्टमेंट में जाके देखो भाई क्या चल रहा है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ क्या एजेंटिक AI से आपका हेल्प। दूसरे डिपार्टमेंट को जाकर पूछो। अगर एक देखो, मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। वन गुड थिंग इज, if you are in any company, let's say your year of experience is 3 and you want to come into this field, try करो। not 100% it will be successful, but IJP लेने का ट्राई करो। IJP इंटरनल जॉब पोस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, और उसमें इंटरेस्ट दिखाओ, उस डिपार्टमेंट को ढूंढो, उसका हेड कौन है, मैनेजर कौन है, डायरेक्टर कौन है, उससे जाके बात करो। भाई AI का कुछ ओपनिंग आया, मैं ये सीख रहा हूँ, आई कैन हेल्प यू, ये वो, मतलब दिखाना होगा थोड़ा सा जिद, तब जाके घुसोगे। मार्केट में तो है ही, मार्केट में भी होगा, बट वहाँ भीड़ ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मोटा मोटी समझ गया पूरा। यहाँ अभी एजेंटिक AI पे जाके दुनिया रुका हुआ है, रुका हुआ है इन द सेंस अभी यहाँ पे गेम यहीं पे खेल रहा है सब, यहीं पे एक्सप्लोर कर रहा है। सैम एल्टमैन से लेके पूरा दुनिया इसी में घूम रहा है कि भैया क्या करे एजेंटिक AI से, कैसे हम बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करें। सत्य नडेला तक यही सब ढूंढ रहे हैं। बेसिकली होगा क्या, मैं थोड़ा सा फ्यूचर बता देता हूँ अपना, मुझे जो लग रहा है कुछ नहीं होगा। LLM बेस्ड और एजेंटिक AI के बेसिस पे जितने भी एप्लीकेशन हैं जो पहले से बने हुए हैं, उसका बैकएंड चेंज होगा। ये चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ सत्य नडेला ने बोला, और मोस्टली ये बात सही होगा। बैकएंड चेंज होगा मतलब समझ रहे हो। अब आपको हर एक इंडस्ट्री के लिए जो भी एप्लीकेशन है, हर एक इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री मतलब क्या, एक BFSI हो गया, एक हेल्थ केयर हो गया, और क्या होगा, एक ऑटोमेटिव हो गया, उसके अंदर EV आ गया, ये और जो कुछ भी होगा, रिटेल होगा, ये सभी का अंदर का जितने भी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आज चल रहा है, उसमें एजेंटिक AI घुस के उसको ऑप्टिमाइज करेगा। हर एक इंडस्ट्री के लिए एक एजेंट होगा, मास्टर एजेंट, उसके अंदर हर थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स होंगे और वो लोग काम करेगा। ये ऐसा माना जा रहा है, ऐसा इस तरह के का चेंजेस आने वाला है। सो बेसिकली ये जब होगा तो दुनिया में लोगों का जो जॉब है वहाँ बहुत कम हो जाएगा। ये जो जॉब है जहाँ लोग जो एप्लीकेशन मेंटेन कर रहे हैं, बना रहे हैं, वाइट कलर जॉब खासकर, वो बहुत कम होके एजेंट संभालने लगेंगे। तो बस कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो ये एजेंट बनाएंगे, और मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर आपको बनना है तो वो बनो जो एजेंट बनाए। यू शुड बी the master of circumstance rather than the victim of the circumstance. That's what I'm trying to say you. Okay? I hope इससे आपको थोड़ा बहुत रास्ता दिखा होगा कि कैसे AI में करियर बनाए। अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट में बताओ, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करो। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, and likewise I will be keep making informational and educational video on AI. Thank you so much. Have a great day.